Vande Mataram, Jai Hind friends. In last lecture, I explained you the right hand thumb rule, okay, and then magnetic effect due to the current through a straight conductor, okay. So in this part, we will try to understand. In this part, we will try to understand the force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, one part is that. So see here, we have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. The field so produced extracts the force on a magnet placed in the vicinity of the conductor. French scientist André Marie Ampère suggested that the magnet must also extract an equal and opposite force on current carrying conductor. The force due to the magnetic field acting on a current carrying conductor can demonstration, and for that let's do one activity. You can see in your screen in the board, I have drawn one figure. Okay, so what you have to do, you have to take small aluminium rod as shown in the figure, that is AB, okay, almost 5 centimeter long, okay, and two conducting wire which you can see in the figure. One, it is joined from B with the help of stand, and second from A, it is not joined, okay, it is backside from the stand, okay, and supported, and entire circuit is developed there. You can see one battery is there, key is there, and one horseshoe magnet has kept such a way that rod come its between. हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरह से सेट करना है कि वो जो रॉड है बच्चों, वो उन दोनों के बीच में, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आ जाए, ओके। और उसके बाद में आप इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करो, ठीक है, स्विच ऑन करो, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व। तो उसका एक छोटा सा पार्ट देखो, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। ये बोल रहा है करंट कैरिंग रोड AB एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो जो AB जो करंट कैरी करके लेके जा रहा है, क्योंकि उसमें से करंट पास ऑन हो रहा है, परपेंडिकुलर द लेंथ, उसकी जो लंबाई है उस लंबाई के परपेंडिकुलर, एंड टू द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बना है उसके जो है परपेंडिकुलर फोर्स डेवलप होगा। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करते हो, वो रॉड एल्यूमिनियम का है, इवन इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बराबर है, और इट स्टार्ट अट्रैक्ट टूवर्ड द ओरिजिनल मैग्नेट, बराबर है। अब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो सी नाउ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड is the above activity suggested that a force extracted on current carrying aluminium rod when it is placed in the magnetic field, okay. It also suggests that the direction of force is also reverse when the direction of current through the conductor is reverse. अगर आप ये प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस अगर रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू करो तो फोर्स भी जो है उल्टे डायरेक्शन में लगना शुरू होता है।
Now change the direction of the field to vertically toward by the interchanging the two pole of the magnet. It is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod get reversed. It shows that the direction of the force on the conductor depend on the direction of current. Force जो है वो current के ऊपर depend करता है. Of the magnetic field experience and shows that the displacement of the rod is larger when the direction of current is the right angle to the direction of magnetic field. तो वो वैसे ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखाना शुरू होता है और हॉर्स शू मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसमें डेविएशन होना शुरू होता है. इस एंटायर फेनोमेना को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंगो और उन्होंने उसके ऊपर से एक रूल क्रिएट किया एंड दैट रूल इज कॉल्ड द फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल. आप इसको ऐसे देख सकते हो, यू कैन सी लाइक दिस वे. ये मेरी उंगली से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो लाइक दिस वे. ये अगर आप देख पा रहे हो तो ओके. अब इसमें कौन सी चीज क्या बता रही है? अगर मैं मेरी उंगली को कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पे इस तरह से रखता हूँ तो मेरी जो उंगली ऊपर की तरफ थी वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है. जो मेरी उंगली राइट एंगल ट्रायंगल में फ्रंट साइड में थी वो करंट को शो करती है और जो थंब है वो फोर्स को जो है इंडिकेट करता है. ओके. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर इन योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी हर कोई एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो इस तरह से. इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी वाली? ये फिंगर, ये वाली फिंगर, दिस फिंगर. ओके. डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये जो ऐसा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है करंट का डायरेक्शन बताएगा. इज इट क्लियर? और जो थंब है and the thumb will point the direction of motion of the force, वो फोर्स के मोशन को इंडिकेट करेगा इन द कंडक्टर. और इसकी मदद से बच्चों, इस प्रिंसिपल की मदद से दो डिवाइसेस एग्जिस्टेंस में आए. वन इज द इलेक्ट्रिक मोटर एंड सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर. थोड़ा सा फर्क है उसमें. ओके. डिवाइसेस दैट यूज कैरिंग the conductor and magnetic field include the electric motor, electric generator, loudspeaker, microphone, measuring instrument. The next few section, okay, we will think about it. ये सारे के सारे फ्लेमिंगो के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर अप्लीकेबल होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं. ठीक है. इतना अंडरस्टैंड करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है, दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पे देखो, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिक्टेट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. कि भाई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर. ओके. The pointer remain at 0. For 0 to current flow through, it can deflect either to left or the right. The 0 mark depending on the direction of current. Okay. यहाँ पर जिसने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत सारा वर्कआउट किया उसको भी जो है थोड़ा ट्रिब्यूट जरूरी है, एंड दैट इज़ द माइकल फैराडे. उनके ऊपर भी थोड़ी जो है बातचीत हम लोग कर लेते हैं. So Michael Faraday was an experimental physicist. थियरी बोलने वाला बंदा नहीं था, एक्सपेरिमेंट करने वाला था.
He had no formal education. He worked in the bookbinding shop during his early year. He used to read the book that come for binding. This way Faraday developed his interest in science. He got an opportunity to listen some public literature by Humphrey Davy of the Royal Institute. Humphrey Davy वो बंदे थे जिन्होंने पहली बार जो है बच्चों जो वर्कर लोग इसमें माइंस में वर्क करते हैं उनके लिए सेफ्टी लैंप बनाया था। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग जो लैंप लेके जाते थे गैसेस की वजह से अंदर ब्लास्टिंग हो जाती थी, तो हेम्पी डेवी ने पहली बार सेफ्टी लैंप बनाया, बराबर है। तो उनके बहुत सारे लेक्चर को उन्होंने अंडरस्टैंड किया। Soon he was made a assistant of Davy Laboratory at the Royal Institute. Faraday made a several path-breaking discoveries that include the electromagnetic induction and the law of electrolysis. Several universities conferred on him the honorary degree, but he turned down such honor. Faraday loved his science work more than any honor. मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट सो कि आपके पास में डिग्री हो तो ही आप कुछ इन्वेंशन कर सकते हो। अगर आपके अंदर मौलिकता है, कुछ आपके अंदर थिंकिंग है, तो आदमी सेल्फ, जिसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं ना, अपने आत्म प्रज्ञा, उसकी मदद से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो प्रज्ञा आपको खुद अपने अंदर जलानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, वो कोई दूसरा करके दे सकता नहीं है, बराबर है। मैं बहुत बार जो एग्जांपल देता हूँ कि भाई गधे को मार कर जो है इंसान नहीं बनाया जा सकता है, तो गधा गधा ही रहेगा, उसको बोलने से वो जो है इंसान नहीं बनेगा। वो एक स्वयं प्रेरणा है, बराबर है, इंटोनेशन बोलते हैं उसको, तो वो जो है इंसान में खुद आनी चाहिए। ये सब पढ़ाने के पीछे मकसद भी यही है बच्चों। इज इट क्लियर? सो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये बोल रहा है आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक एक्टिविटी दी रखी है इन लोगों ने 13.9। देखो क्या बोल रहा है, टेक टू डिफरेंट कॉयल ऑफ कॉपर वायर, दिस इज इन योर पेज नंबर 235। ओके, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न, 50 to 100 टर्न, मतलब वो सोलेनाइड बन जाएगा। इंसर्ट सम ओवर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रोल, contact the coil, first one having large number of turns in the series with battery and plug key, and also connect the second coil with a galvanometer, plug the key, observe the galvanometer। देखो दोनों में कितनी दूरी है, लेकिन जैसे ही जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर डेविएट होना शुरू होगा, जो इंडिकेट करेगा कि भाई फोर्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है। From the above observation, we conclude that the potential difference is induced in coil 2 whenever the electric current pass through coil 1, बराबर है। दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस शुरू होता है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर से फ्लेमिंगो ने राइट हैंड रूल बनाया, और उसकी मदद से जो डिवाइसेस बना बच्चों, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमारे घर में जो हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप का जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, और हियर वी विल सम अप आवर चैप्टर। यहाँ पे इसको हम खत्म करेंगे, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द मेन सप्लाई। अब ये दो तरीके से अपने घर में आता है बच्चों, या तो जो है पोल के थ्रू आता है, बराबर है, जिसको ओवरहेड वायर बोलते हैं, या फिर जमीन में से जो है वायर निकाल कर लेके आते हैं, मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, बराबर है। जबकि अपना हलोल है अभी भी जो इतना कोई प्रोग्रेसिव नहीं है, तो यहाँ पे अभी भी ओवरहेड जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग जो ओवरहेड वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस लगभग हम लोग 220 वॉट मेंटेन रखते हैं। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर पास इनटू द इलेक्ट्रिक
मीटर थ्रू द मेन फ्यूज। वहाँ से जो है जो तार है वो निकलकर इलेक्ट्रिक मीटर से जो है मेन फ्यूज तक जाता है। मेन फ्यूज जिसको आप डिप्पी बोलते हो, बराबर है, और वहीं से जो है पूरे घर में फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए अलग अलग चैनल्स बनाए जाते हैं। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड इन द लाइन वायर इन द हाउस। These wires supply electricity to separate the circuit with the house. Often two separate circuits are used. One is 15 ampere current rating appliances with the higher power rating such as the geyser and cool, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज लगता है, बराबर। एंड सेकेंड वन इज़ द 5 एम्पियर, जिसमें आपका पंखा है, फिर आपका ट्यूबलाइट है, ये सब चीज़ें वर्कआउट करती है। The earth wire which insulations of the green color usually connected the metal plate deep into the earth। अब हमारे यहाँ पे हालोल में अभी भी अर्थिंग की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, तो हमको ये सब करना पड़ता है। मुंबई जैसे शहरों में, अहमदाबाद जैसे शहरों में स्पेसिफिक ऐसे अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अर्थिंग की जाती है। is usually connected the deep on the earth near the house. This is used the safety measure। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट जब हम कोई मेटेलिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है पास ऑन हो जाता है, तो वो हमारे बॉडी को असर ना करे, ऐसी चीज़ें सीधा जो है इस वायर के थ्रू सीधा ज़मीन में उतर जाए। इसके लिए हम लोग घर में जो है मोस्टली 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा जो पिन होता है वो अर्थिंग का ही होता है, जो एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट को खींच के सीधा ज़मीन में उतार देता है। उससे डिवाइसेस को एंड एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग को कोई इंजरी होती नहीं है। The metallic body is connected to the earth wire which provide the low resistance conducting path of the conductor, thus ensure that any leakage of current in the metallic body of the appliances keep potential to that the earth. The user may not get the severe electric shock। ओके, यहाँ पे देखो आपको पेज नंबर 238 में एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, कैसे अपने घर में रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे बोला इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन कनेक्टेड, ओके, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। ईच अप्लायंसेस हैज टू द सेपरेट स्विच ऑन एंड ऑफ the flow of current through the order. Such appliances has equal potential difference, they are connected parallel to each other. Electric fuse an important component is also domestic circuit. We have already studied the principle of working the fuse in the previous chapter. The fuse is a circuit prevent damage to the appliances, बराबर है, वो एक पतले से मेटल का बना होता है। ओवरहेड लाइटिंग आने पर, बराबर है, ज़्यादा वोल्टेज आने पर वो ऑटोमेटिकली हीट की वजह से मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट स्टॉप हो जाता है, करंट स्टॉप हो जाता है और डिवाइसेस को नुकसान होने से बच जाते हैं। पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज melt to break the electric circuit. Overloading can also occur due to the accidental hike in the supply voltage. Sometimes overloading is caused to connecting megawatt appliances in single socket. इसके साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी प्रिकॉशन रखना चाहिए, खास करके जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल करो। अभी आपके बुक में नहीं दिया हुआ, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम बने उतना पैरों में रबर के स्लीपर वगैरह पहन के इस्तेमाल करो। गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करो। घर में बने उतना नीचे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट नहीं रखो, क्योंकि बच्चों को बड़ी आदत होती है कि वैसे कोई भी होल वगैरह में कुछ पेंसिल वगैरह खिला वगैरह कुछ भी घुसा देते हैं। अगर ऐसा कुछ है भी तो भी उसे जो है आप किसी चीज़ से कवर करके रखो ताकि बच्चों की पहुंच से ये चीज़ें दूर रहे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक हमारे लिए बूंद तो है ही है, लेकिन अगर हम उसको प्रिकॉशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो नहीं तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट इज़ डेंजर फॉर द लाइफ। सो बाय दिस मैसेज आई एम कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपना पूरा एंटायर फिजिक्स पार्ट क्लियर कर लिया है। अब हमारे 2 चैप्टर बायोलॉजी में बच रहे हैं, वन इज़ द रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज़ द इवोल्यूशन। इसको हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।